Hello everyone, welcome in this channel. Now I am taking Coulomb's law in vector form. This is generally asked in your council exam, ISA exam. And what will you write? What is the important? When it was given Coulomb's law in vector form, there will be two conditions. Q1, Q2 is greater than 0 or Q1, Q2 is less than 0. First I am discussing Q1, Q2 is greater than 0. I am saying Q1, Q2 is greater than 0. It means it is possible when the both charges q1 and q2 either they are positive or either they are negative. Just try to understand. Suppose this q1 is 2 coulomb and this one is also 2 coulomb. So 2 into 2 4 and 4 positive will come, which is greater than 0. And suppose here you are taking minus 2 coulomb and this one is also minus 2 coulomb. So minus 2 and minus 2. So again it will become positive, that is the 4, okay, and 4 is again greater than 0. So this condition is applicable when the both charges are either positive or negative. Here you will not take one positive or one negative. So here first I am discussing when q1 q2 is greater than 0, that means both charges are same kind, either they are positive or negative. Let us start. Before to start this, just try to understand. Here I am taking q1 charge at point A, q2 charge at point B, and position here we are taking O with reference. Then r1 and r2, these are the position vector of this point A and this point B. Okay. Now here if you will apply law of triangle, because these two are vectors. So if suppose you are taking this is vector, so it depends कि you are going in this way or in this way. So when you are going in this way, so then A to B you will get. When you are going in this way, so B to A, B से A you will go. Okay. So when you are going A to B, so then it will come R2 minus R1. When you are taking BA, so then this is R1 minus R2. This first number is coming, I am putting in this way R21, and here 1 is coming, so I am taking R12. Simple, I am saying in place of R2 minus R1, we are saying R21, and R1 minus R2 in place of we are writing R12. Now suppose we want to calculate force on this charge. इस पर हम निकालना चाहते हैं इसकी वजह से कितना लग रहा है, इसकी वजह से यानी हम इधर जा रहे हैं, इस पर फोर्स निकालना चाहते हैं. तो Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो वी विल राइट इन दिस वे F12. जिस पर हम निकाल रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसकी वजह से निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे. सो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. This is you know very well Coulomb's law. Now here it is a vector form, so one here it should be vector. अदरवाइज आप कैसे कहोगे Q1 Q2 R सब तो आपको दिख रहे हैं, स्केलर है. तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं. अब F12 का मतलब जो ये आपको लर्निंग पॉइंट याद रखना है, रट्टा मार के रखना है कि अगर यहाँ R12 है तो आप यहाँ भी R12 कर दोगे, यानी फोर्स आप इस पर निकाल रहे हो चार्ज 1 पे चार्ज 2 की वजह से, तो डायरेक्शन R12 आएगी. R12 का मतलब जब आप यहाँ पे खड़े हो तो इसकी वजह से निकाल रहे हो, यानी ऐसे जा रहे हो. ऐसे जाने का मतलब आप फोर्स डायरेक्शन क्या ले रहे हो, BA. और BA को हम क्या ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं R21. वाई वी आर टेकिंग R21, हमने कंप्लीट वेक्टर क्यों नहीं लिया. अब ज़रा समझिए, वेक्टर ए किसी भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर हटाना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर को अगर सब्जेक्ट फार्मूला बनाएंगे तो वी विल राइट वेक्टर ए अपॉन ए. ओके. तो अगर आप यहाँ पे इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे R12 वेक्टर लगाओगे अपॉन R. उस कंडीशन में F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर था, एक R और आ जाएगा, R क्यूब हो जाएगा और ऊपर R12 हो जाएगा. आई एम राइटिंग हियर, इट मीन्स F12. देखिए सारा का सारा यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2. अब यहाँ पे R स्क्वायर ही है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R.
ये दोनों मिलके देखिए r क्यूब हो जाएंगे। तो आप एक मैंने कहा ना रट्टा मार लो, अगर 1 2 यहाँ नंबर आ रहा है वेक्टर फॉर्म में कह रहा है तो यहाँ 1 2 लिख दो, अगर यहाँ पे 2 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 1 लिख दो। बस आपको इतना याद रखना है इस केस में, जब आपके यहाँ पे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तब। ओके, और इसी तरीके से उसमें भी हो जाएगा, लेकिन उसमें एक फ़र्क हो जाएगा, वो भी बताते हैं। अब यहाँ पे F21 अगर हमें निकालना है इसी केस में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन यूनिट वेक्टर R नहीं, यहाँ पे हमने जान के नहीं लिखा, क्या आएगा 2 1 आएगा, मैंने कहा ना जो यहाँ पे वही। तो अब हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और यहाँ वेक्टर R21। अब मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर में डिमांड होगी तो आपको क्या होगा, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के बाद आपको ये दोनों फाइनली रिजल्ट लिखने पड़ेंगे। इन दोनों में सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 है। यही इसी तरीके का आपका, जब ये हमने चार्जेस लिए हैं अपोजिट चार्जेस, जब आप यहाँ पे अपोजिट चार्जेस नहीं सॉरी सेम चार्जेस लिए हैं, जब आप यहाँ पे अगर अपोजिट चार्ज ले लोगे, एक Q1 है और एक Q2 है, तब इसमें बेटा क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी। लेकिन फार्मूला दोनों के केस में यही आएगा, बस आपको यही याद रखना है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप सो कि यू अंडरस्टूड। तो थैंक यू एवरीवन, आपने मेरा वीडियो को इतने ध्यान से देखा, समझा। अगर आपको और भी किसी पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज, और आपको ये वीडियो कैसे लगा इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।